है, आपके जो भी फ्रेंड है उनको बोल दो। मैंने आज व्हाट्सएप पे भी डाला था कि हैप्पी टू सी यू। हेलो। Yes, sir. हाँ, तो थोड़ा ध्यान दे दो। So I think we should start now. 47 has joined. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. So shall I start now? Yes, हाँ sir. sir. Yes, sir. You Okay. can. Okay. Okay. So in the last lecture we have studied family. कौन सी फैमिली पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने? ब्रासिक से शुरू की थी। Brassica. कौन सी फैमिली पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में? Brassica. ब्रासिक से नहीं, शुरू की। हमने कंप्लीट just we have completed the family मालवेसी। Malvesi, and just I have रहना सर उसके आगे introduced. बढ़ Yes, just I have introduced you family Brassicaceae या Cruciferi, and I have already told you that Yes, it is quite difficult to remember each and every term, and that's why I am going to repeat सर few वो of the डिस्टर्ब हो रहा है, characteristic मतलब features. क्लियरली आवाज नहीं आ रही है। आवाज इसलिए आ रही है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के माइक ऑन है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपके यहाँ से डिस्टरबेंस है, अपने अपने माइक से थोड़ी टाइम के लिए क्लोज कर दो। अगर कोई बोलना चाहता है तो आप ऑन करके बात कर सकते हैं। अभी सब लोग अपना माइक स्विच ऑफ करो। इज इट क्लियर? ओके, सो we have in an earlier lecture we have completed study of family Malvaceae or Mallows family. In Mallows family we have studied about 6 to 7 members which are at least which should be known to you and their characteristic feature, so that you can go through different different aspects of that family. Now we are going to study another family, and name of the family is Brassicaceae or Cruciferi. आप सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Okay, so today we are going to study the another important family, that is Brassicaceae family. Most of you might have visited our classroom, and in classroom I have shared different third party link or videos. These videos you have to observe at your own pace. जब भी आपको टाइम मिलेगा तो you just go through this video. As far as lectures, online lectures and videos considered, I know that I have given you note for every lecture for about 8 to 10 pages or about 20 pages per lecture. All these are not necessary. You have to extract that note as well as information from the video as well as book and whatever notes available to you. To be frank, I think most of you have so-called books that is available in the market. मार्केट में जो अवेलेबल बुक्स है वो सभी आप लोगों के पास होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन दीज बुक्स आर ऑफ नो यूज बिकॉज दे आर गिविंग ओनली इंफॉर्मेशन व्हिच इज required for examination only, and you are unable to get clear cut idea or fundamental aspects of the lecture. And for this purpose you should, I think you should go through details of the notes which are provided or whatever links which are shared, and after that you have to prepare at least a single page note of every lecture. हर लेक्चर की आप खुद सिंगल पेज नोट बना दो। शायद आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं भी क्लास को बैठता हूं तो मेरे पास पेन और पैड और कागज रहते हैं, तो आप लोग भी ये कोशिश करो कि यू शुड आल्सो राइट डाउन समथिंग ऑन द पेपर सो दैट यू हैव आइडिया कि मैंने क्या पढ़ा। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि आप पढ़ते सुनते जाते और सभी बातें आप भूल जाते हैं, तो पेन और पेपर लेकर रखने की कोशिश करो। सो I am now going to start with the family Brassicaceae. I think all of you observe on the screen in bracket written Cruciferi, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, that means you are looking the screen. Now, as far as Cruciferi considered, Cruciferi was older name, and I have already told you that Cruciferi means cross form corolla, and that's why the name is given to this family is Cruciferi. लेकिन अकॉर्डिंग टू ICBN रूल्स
the family name should end with suffix that is ACEAE. सफिक्स और प्रीफिक्स ये दो वर्ड याद में रखो. प्री मीन्स जो पहले लगता है वो. फॉर एग्जांपल सब इंस्पेक्टर, इसमें सब ये पहले लगा हुआ शब्द है, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स. और सफिक्स का मतलब जो आखिरी में लगता वो, दैट इज फॉर एग्जांपल ब्रासिकेसी, ACEAE word is common and it is CEAE actually. Brassica is the larger genera of this family, and according to ICBN or today's ICN, ACEAE is suffix to this family. So we are going to study this family in relation to certain important things. What these things are? So we are going to study characters of Brassicaceae. Character means morphological characteristic features of Brassicaceae. Morphology means whatever you are going to observe by your naked eye. Then you should have idea regarding the distribution of Brassicaceae. Now, as far as distribution considered, in the different geographical areas of the world, this family is distributed in which way, that is distribution. For example, some plants are distributed or more predominantly observed in tropical areas. Few of them are subtropical, few of them are temperate, and few of them are available in the alpine zone. If we come across these different zones, normally tropical zones showing rich diversity, while after that subtropical and very less diversity is observed in alpine zone. आप सभी लोग सुन रहे हैं ना? मेरी Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो डिस्ट्रीब्यूशन, जब डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको पता है तो यू हैव आइडिया रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक फीचर. लेट अस, आई एम गोइंग टू गिव यू सिंपल एग्जांपल दैट इज ऑफ वन ऑफ द मेंबर. आप में से कितने लोगों को अर्जिमोन मेक्सिकाना या पिवळा धोत्रा मालूम है? आप लोगों ने सुना है अर्जिमोन नाम? Yes, sir. नहीं. अच्छा, ओके. जिन लोगों को अर्जिमोन का नाम मालूम नहीं है उनके लिए मैं एक जस्ट एक फोटोग्राफ दिखाता हूं. अभी आपको गूगल दिख रहा है? हेलो? Yes, sir. ओके, मैं जस्ट आपको अर्जिमोन मेक्सिकाना या जिसको बोलते हैं पिवड़ा धोत्रा, उसका फ्लावर और प्लांट दिखाता हूं. आप जस्ट देख लो. क्या आप लोगों ने ये प्लांट देखा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये प्लांट कहाँ मिलता है? कुछ आइडिया है? हेलो? No, sir. No, कहाँ sir. मिलता वो नहीं पता, लेकिन देखा है. Okay, sir. ओके, तो सिर्फ आप अभी नोटिस करो. Sir, कहाँ पे? नॉर्मली दिस प्लांट इज अवेलेबल ऑन द वेस्टलैंड. वेस्ट का मतलब है खराब, वाया गेलेली जमीन, Cactus. पड़ी घर वगैरह वगैरह. आ रहा है ध्यान में? Yes, sir. वेस्टलैंड पर Yes, हमेशा sir. दिखता है. एंड दिस इज अ कॉमन वीड एंड नेम ऑफ दिस प्लांट इज अर्जिमोन मेक्सिकाना. तो अगर कोई आपको बोलता है कि कॉमन वीड मतलब आपको मालूम है कि कोई भी कॉमन वीड हमेशा अब्रप्टली ग्रो होता है, उसके लिए कोई स्पेशल कंडीशन की जरूरत नहीं है. क्या आप लोगों ने इसके सीड्स देखे हैं? फ्रूट और सीड्स देखे हैं? नहीं देखे तो मैं आपको जस्ट मिनट में आपको यहाँ फ्रूट और सीड्स दिखाता हूँ. यू जस्ट ऑब्जर्व. अब यहाँ देखो, फोटोग्राफ में फ्रूट्स दिख रहे हैं. हेलो? फ्रूट्स Yes, दिख रहे हैं? sir. Yes, sir. ये देखो फ्रूट्स कैसे ओपन होते हैं. Yes, देखो sir. 5 लॉक्यूल्स है और हर लॉक्यूल में मस्टर्ड जैसे सीड्स है. एंड दीज सीड्स आर नॉर्मली यूज्ड फॉर अडल्ट्रेशन. अडल्ट्रेशन का मतलब आप जानते हैं, किसी चीज में हम जब अनवांटेड चीज को मिला देते तो हम बोलते हैं उसको अडल्ट्रेशन. अब ये सीड्स देखो, आप फोटोग्राफ दिख रहा है? Yes, sir. Yes. these are just like mustard seeds. मस्टर्ड के सीड जैसा है. एंड दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड फॉर अडल्ट्रेशन इनटू मस्टर्ड. ये देखो स्केल पर लगाया हुआ मस्टर्ड जैसे सीड्स दिख रहे. मेरा कहने का मतलब अलग था. आई एम गोइंग टू गिव यू द एग्जांपल रिगार्डिंग आवर फैमिली, स्टडी ऑफ फैमिली. तो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई बोल रहा है कि इट इज अ कॉमन प्लांट ऑफ एक्वेटिक एरिया,
so that you have idea that it has certain specific characteristic feature which are showing aquatic features like the hydrophytic plant features. कोई बोलता है कि this is a common of cultivated ornamental plant. फॉर एग्जाम्पल हम अपने बैकयार्ड में या फोरग्राउंड एरिया में हम लगाते हैं, तुलसी लगाते हैं, कई बार आपने देखा होगा क्रिसैंथेमम, शेवंती लगाते हैं, गिलार्डिया लगाते हैं. ऑल दीज आर ऑर्नामेंटल प्लांट्स. सो अगर जियोग्राफी से रिलेटेड हम कोई टर्म यूज करते हैं तो दैट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन. I again repeat, in my very first lecture I have told you that a biologist or a botanist should have good deal of knowledge regarding the geography. उसको geography का अच्छा knowledge होना जरूरी है. She should have good deal to understand and observe each and every characteristic feature. So just distribution gives you idea regarding morphology of that plant. Then economic importance. Now remember, we should be known with economic importance of number of members of that family. हम कौन से प्लांट अपने आजू बाजू में लगा देते हैं या प्लांटेशन करते हैं? The plants which are required, which fulfill our some basic requirements according to geography, available other environmental condition, we are going to plant it. शायद आप लोगों ने देखा होगा घर के आजू बाजू में नॉर्मली हमारे 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट एरिया अवेलेबल रहता है और आप उसमें हर्बेसियस या श्रबी प्लांट लगाते, कोई भी ट्री प्लांट आप नॉर्मली नहीं लगाते. सो वी शुड बी नोन विद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसेस ऑफ दैट फैमिली. Normally economic importances are like food plants, they may be vegetable plants, they may be fruit yielding plants, they may be oil yielding plants, or they may be plants of industrial importance. So if it is known to us regarding economic importance of plants included in this family, then it is more easy to remember it. Then we are going to study affinities. What is the affinity of that family? That means it is related to which family, or which family is primitive to whatever family you are studying, or which family is advanced to family which you are going to study. That is affinity. Affinity से हमें पता चलता है कि what are the characteristic features which are related genera में है. उसके बाद important types, यानी which important genera available in this family. Now remember well, many times it is misunderstood that study of angiosperm or study of family means only a study of morphology. Although 80% time we give importance to morphology, importance to distribution, importance to economic importance to affinities, and importance to primitive and advanced feature of family is also important. अब कैरेक्टर अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल आपको पता है हम लोगों में बहुत सारे कैरेक्टर है, थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर है. मैंने अगर किसी को पूछा कि अरे वो एक लड़का है, उसका नाम बता दो क्या है, वो चश्मा पहनता है, उसकी हाइट इतनी है, तो आप झट से बोलेंगे कि सर वो शायद नयन निखाड़े है क्या. एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको. सो जस्ट लाइक दैट, मैंने अगर किसी को बोला कि XYZ लड़का मालूम है क्या, ऐसा है, मैंने कैरेक्टर बताया, तो आप लोग बोलते सर वो बहुत लंबा है, वो सर चश्मा पहनता है क्या, वो मतलब मेरे लिए थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर में से मेरे लिए या आपके लिए कैरेक्टर जरूरी कौन सा हो गया, उसकी हाइट, नहीं तो उसका चश्मा पहनना, नहीं तो एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर. सो सच अ टाइप ऑफ डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ दैट फैमिली इज इम्पोर्टेंट. मैं फिर से और एक एग्जांपल आपको बताता हूँ. हम यहाँ कोई प्लांट की स्टडी नहीं कर रहे, हम यहाँ फैमिली की स्टडी कर रहे. आपने देखा होगा ए इंडिविजुअल फैमिली शोज प्रेजेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ जनरा एंड थाउजेंड्स ऑफ स्पेसीज. Then it is difficult to go through each and every species, and for this purpose we are going to study the comparative study. And out of this comparative study, few of the characteristic features are related to important and few of the characteristic features are different. फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट टाइम मालवेसी फैमिली पढ़ी थी, तो मालवेसी में हमने देखा था कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्पेशल कुछ जनरा में है, कुछ नहीं है. उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे थे
सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ स्टिकी सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ इपिकैलिक्स, प्रेजेंस ऑफ मोनोअडल्पस स्टैमेन, प्रेजेंस ऑफ पेंटाकार्पेलरी सुपीरियर ओरी, प्रेजेंस ऑफ आयदर कॅप्सूल और प्रेजेंस ऑफ कार्सिरुलस टाइप ऑफ फ्रूट. आणि आपण त्याला म्हणलो होतो डायग्नोस्टिक कॅरेक्टरिस्टिक फीचर. यू आर गेटिंग इट? डायग्नोस्टिक मतलब सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट, दोज कैरेक्टर्स विच आर नॉर्मली अवेलेबल इन majority of the members of family. These are diagnostic. So suppose for example now we are going to study family Brassicaceae, and in Brassicaceae what are the different diagnostic characteristic feature. मैं फिर से बोल रहा हूँ, डायग्नोस्टिक का मतलब है मेजॉरिटी ऑफ द जनरा में वो कैरेक्टर होना चाहिए. अब देखो, फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक. एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है हैविंग रेगुलर सिमेट्री और फ्लावर हैविंग कंप्लीट फ्लावर्स है. नॉर्मली कैसे, दोज फ्लावर्स विच शोज प्रेजेंस ऑफ कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, दे आर नोन एज एक्टिनोमॉर्फिक. उससे दूसरा मतलब, और इट इज रिलेटेड टू सिमेट्री ऑफ अ फ्लावर. एक्टिनोमॉर्फिक वर्ड जो है सिमेट्री से रिलेटेड है. नॉर्मली ऑर्गेनिज्म में सिमेट्री दो टाइप की होती है. एक तो इट शोज सिमेट्री और इट डिड नॉट शो सिमेट्री, मीन्स असिमेट्रिकल. आप सभी लोग अमीबा की डायग्राम जानते हैं? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अमीबा असिमेट्रिकल है. मतलब आप बॉडी पर कोई भी ऐसी एक या मोर देन वन लाइन नहीं निकाल सकते. अराउंड दैट लाइन ऑर्गेनिज्म इज सिमेट्रिकल. लेकिन ह्यूमन बीइंग के बारे में देखो, आप एक स्ट्रेट लाइन निकालते, अलोंग द बोथ साइड्स ऑफ स्ट्रेट लाइन सेम बॉडी इज ऑब्जर्व्ड. सो वी से दैट human beings are actinomorphic symmetry, zygomorphic symmetry, or in case of majority of the flowers there is more than one axis along which there is symmetry observed and it is actinomorphic. बहुत सारे प्लांट्स में actinomorphic symmetry है, लेकिन फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पी zygomorphic symmetry है, zygomorphic और bilateral symmetry. hermaphrodite means bisexual. So flowers are actinomorphic, rarely zygomorphic, and hermaphrodite or bisexual. Sepals 4 in 2 whorls of 2 each. सबसे outermost whorl जो है that is called as a sepal or it is known as a calyx. हमने मालवेसी में कैलिक्स से रिलेटेड और एक एडिशनल whorl देखा था, epicalyx. Epi means above. So sepals 4 in number in 2 whorls, मतलब दो outer और दो inner, and that's why they are called as a sepals 4 in 2 whorls. Petals 4 diagonally arranged and cruciform. हम बाद में इसके अरेंजमेंट देखेंगे, how they are cruciform arranged. Stamens 6 tetradynamous. अब थोड़ा सा वर्ड्स देखो, स्टैमेन कितने हैं? 6 है, तो हमें टर्म यूज करनी थी 6 या हेक्सा, लेकिन हम टर्म क्या यूज कर रहे हैं? टेट्राडिनामस. डाई मीन्स 2, dynamic term is normally used regarding anther, and how these are tetradynamous. Tetradynamous का मतलब है दो के बंडल है, यानी दो, टोटल नंबर ऑफ बंडल 2 है. एक 4 का बंडल है और बचा हुआ दूसरा 6 है, तो 2 का. So 4 + 2 कंडीशन, that is presence of tetradynamous stamen. इसके पहले हमने जो फैमिली देखी थी उसमें एंथर्स कैसे थे या एंड्रोसियम कैसा था? एनीबडी? मालवेसी? Die वो था सर. नहीं ना, डाई नहीं, मोनो एडल्पस. मोनो एडल्पस हमने, यस एग्जैक्टली, हमने वहां बोला था मोनो एडल्पस. मोनो मींस दे आर फॉर्मिंग ए सिंगल बंडल. हमने देखा था मोनोथिकस थे, बीन शेप्ड और रेनिफॉर्म थे, सिंगल सेल्ड थे, और फिलामेंट्स ऑफ दीज एंथर्स इन केस ऑफ मालवेसी दे आर फॉर्मिंग ए बंडल अराउंड द स्टेमिनल ट्यूब. तो दे आर फॉर्मिंग द स्टेमिनल ट्यूब. लेकिन यहाँ कैसे है? टेट्राडिनामस, दैट इज शोइंग प्रेजेंस ऑफ 4 + 2. हमेशा ऐसे डायग्नोस्टिक कैरेक्टर करके फैमिली में जो बताया जाता याद रखने की कोशिश करो. दीज कैरेक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट. इवन इफ यू रिमेम्बर दीज कैरेक्टर यू कैन डिस्क्राइब और इवन आइडेंटिफाई द नंबर. सबने देखो, गाइनोसियम बायकार्पेलरी. बाय का मतलब है 2, कार्पेल कितने हैं? 2. उसके सामने वर्ड है सिन कार्पस. सिन मीन्स फ्यूज्ड, कार्पस मीन्स कार्पेल्स, दैट इज कार्पेल्स आर फ्यूज्ड.
मालवेसिम ने हमने देखा था पेंटा कार्पेलरी सिंकार्पस, 5 कार्पेल थे, फ्यूज हो रहे थे। यहाँ कैसा है कंडीशन, बाय कार्पेलरी सिंकार्पस। पैराइटल प्लासेंटेशन, अब प्लासेंटेशन के बारे में मैं बताता हूँ। प्लासेंटेशन के 5-6 अलग अलग टाइप है, जैसे बेसल, एक्सियल, पैराइटल और कौन सा मार्जिनल एक्सेट्रा। जस्ट मिनट में आपको पहले प्लासेंटेशन टाइप्स दिखाता हूँ सो दैट इट इज मोर इजी टू अंडरस्टैंड। जस्ट मिनट, प्लासेंटेशन टाइप्स, जस्ट मिनट। आप सभी लोग शायद प्लासेंटेशन टाइप जानते हैं। यस हेलो, सर। यस सर, फर्स्ट ईयर में था। फर्स्ट ईयर में था, फिर भी मैं आपको सिर्फ डायग्राम दिखाता हूँ सो दैट यू आर आइडिया। क्या अभी आप लोगों को डायग्राम दिख रही? Yes, sir. नहीं, गायब हो just a minute, Sir, it चलिए। is going to be downloaded, just a minute। गया सर। चलो, अभी तो दिख रही डायग्राम। यस सर। हाँ, सो दिस वन एक्साइल, एक्साइल क्यों बोल रहे हैं, सेंट्रल एक्सिस की तरफ अटैचमेंट की ओव्यूल है, सो इट इज एक्साइल। नेक्स्ट देखो मार्जिनल, मार्जिन की तरफ है, सो इट इज नोन एज अ मार्जिनल। पैराइटल, अब पैराइटल क्यों बोल रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू पेरीफेरी। यहाँ तो एक ही तरफ अटैचमेंट है, लेकिन यहाँ पूरे राउंडेड, ट्रायंगुलर, क्वाड्रेंगुलर कुछ तो हो रही है, और सभी अटैच टूवर्ड पैराइटल यानी पेरीफेरी की तरफ। नेक्स्ट बेसल, बेस की तरफ अटैचमेंट है, सो इट इज अ बेसल। एंड दिस वन इज सुपरफिशियल अरेंजमेंट। सुपरफिशियल म्हणजे वरच्यावर, इन द फॉर्म ऑफ अ लेयर। अब हम जो अभी अभी फैमिली देख रहे थे, that is in case of family Brassicaceae, it has been mentioned as Gynoecium bicarpellary syncarpus parietal placentation। मैं फिर से एक बार आपको parietal placentation की डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखो पेरीफेरी की तरफ, और parietal placentation कौन कौन से एग्जाम्पल में है, मैं आपको और एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने कोहड़ा काटा हुआ देखा होगा, भोपड़ा। यस सर। यस सर। अटैचमेंट ऑफ सीड इज टुवर्ड द पेरीफेरी। आपने काकड़ी कट करने के बाद देखिए उसकी अटैचमेंट टुवर्ड द पेरीफेरी होती है। आपने दोड़का कट किया है, उसको देखा होगा, अटैचमेंट टुवर्ड द पेरीफेरी। सो दिस इज द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्लासेंटेशन ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ फैमिली ब्रासिकेसी। सो गाइनोसियम बाइकार्पेलरी सिंकार्पस पैराइटल प्लासेंटेशन। बायलॉक्यूलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, मतलब ओरी के चेम्बर्स या लॉक्यूल कितने हैं, दो है, लेकिन फॉल्स सेप्टम। अब मैं फॉल्स सेप्टम के बारे में बताता हूँ। शायद हॉल बड़ा है और बीच में दीवार डाली तो आप बोलते हैं ये 2 रूम बन गए, लेकिन अगर पर्दा डाला, पर्दा का मतलब है सेप्टम, मतलब आप पर्दा को, कर्टन जो है, कर्टन को आप सिर्फ इधर उधर मूव करके अंदर बाहर जा सकते हैं। वैसे फॉल्स सेप्टम मतलब टोटल नहीं है, फॉल्स सेप्टम है। So it looks like bilocular due to formation of false septum, and this false septum is known as a replum। मैं आपको बाद में ये false septum की डायग्राम भी दिखाऊंगा, नहीं तो जस्ट अ मिनट, हम false septum या रेप्लम के बारे में डायग्राम देख लेते हैं so that it is clear to you। रेप्लम और false septum, जस्ट अ मिनट। आप यहाँ दिख रहे हैं, आपको फ्रूट दिख रहा है, हेलो। यस सर। Yes, sir. ये फ्रूट में देखो, ये फ्रूट का कवर है, ये भी फ्रूट का कवर है। स्प्लिट ओपन होने के बाद जो दिख रहा है पेपरी मेम्ब्रेनस, दिस पेपरी मेम्ब्रेनस इज फॉल्स सेप्टम। और इसके फ्रंट वाले साइड पर एक और बैक वाले साइड पर भी एक ही रो में बहुत सारे सीड्स रहते हैं। इसका अगर ट्रांसफर सेक्शन लिया तो आपको ध्यान में आएगा, दिस इज द फॉल्स सेप्टम सिंगल लाइन and on the both side there are seeds। So such a type of false septum is observed in case of mustard family or family Brassicaceae। Then fruit is siliqua or silicula, जिसमें false septum है उसको siliqua type of fruit बोलते हैं। So these are the interesting characteristic feature of this family। ये interesting characteristic feature है इस family के। आप लोग थोड़ा इस फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक फीचर के तरफ एक बार और देखो। दीज आर द डायग्नोस्टिक कैरेक्टर, कौन से, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, सेपल
2+2 condition, that is sepals 4, petals 4 diagonally arranged or showing presence of cruciform corolla, stamens 6 showing tetradynamous condition, gynoecium bicarpellary, syncarpous, parietal placentation, bilocular due to formation of false septum or repulum, and fruit is siliqua. आप ध्यान में रखो, ये 5-6 कैरेक्टर जो है बहुत जरूरी कैरेक्टर है। अगर आपके पास नोटबुक है तो इन कैरेक्टर्स को लिखने की कोशिश करो। आपके वर्ड में ये 5-6 कैरेक्टर लिखो। मैं आप लोगों को और एक सलाह दूंगा, आप सभी लोग सुन रहे हैं? Yes, Yes, sir. sir. एक पेज पर हर लेक्चर के बारे में जो भी बताया जाता है, आपको जो जरूरी लगता है वो एक पेज पर लगाओ और उस पेज को आप जहां बैठते हैं ऐसी जगह पे चिपका दो। दिन में से 10 बार 20 बार आप सिर्फ उस पेज की तरफ देखोगे तो भी आपके ध्यान में कैरेक्टर रहते हैं। रिमेम्बर वेल रिगार्डिंग द एंजियोस्पर्म और टैक्सोनॉमी, मैंने पहले लेक्चर में आपको ऐसा बोला था कि मेनी पीपल्स कंसिडर इट एज अ टैक्स ऑन मी, but remember the things which we observe, we normally remember these things. इसलिए हमेशा डायग्नोस्टिक कैरेक्टर, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और नंबर ऑफ मेंबर्स की लिस्ट एक कागज पे बना दो, जहां बैठते वहां चिपका दो, दिन में 10 बार उसकी तरफ देखो। आई श्योरली यू रिमेम्बर इट। यहाँ तक कि आपको पता है, आप जब एग्जाम को बैठते, लिखने के लिए बैठते, तो आपको ध्यान में आता है कि ये वर्ड, ये प्यारा को पेज पर कहाँ है, ऊपर वाले सेक्शन में था, बीच में था, क्या आखिरी में था, वो फिगर कहाँ थी, आपके ध्यान में आता है, आपको पेज दिखता है। शायद आप लोगों ने ये महसूस किया होगा। इज इट राइट? Yes, sir. Yes, तो sir. हमेशा एक पेज की, आधे पेज की लेक्चर की नोट बनाने की कोशिश करो। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं जब आप लोगों का लेक्चर लेता हूँ तो मेरे सामने भी ऐसी नोटबुक रहती और नोटबुक पर मैं मेरा खुद कुछ वर्ड्स निकाल के रखता हूँ या कुछ की वर्ड्स कुछ बोलेंगे। देखो अभी आप लोग अगर देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ सिस्टमैटिकली लिखा हुआ नहीं है, लेकिन व्हाटएवर हियर दीज आर द ओनली पॉइंट्स। तो आप भी खुद अपने पास ऐसी कोशिश करो कि आप खुद की एक नोटबुक रहेगी पर डे के लिए, एक सिंगल पेज, और उस सिंगल पेज पर आप अपने पॉइंट्स बनाएंगे सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रिमेम्बर। मैं फिर से आपको बताता हूँ। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फैमिली। अब डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बाद, विदाउट गोइंग टू अदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, I am directly going to economic importances of this family. Now, as far as this family considered, or which are the common plants of this family. अब plant देखो, Brassica campestris or in Hindi which is known as the सरसों। सरसों का मतलब है राई या मस्टर्ड, येलो कलर के फ्लावर्स और लीफी वेजिटेबल। शायद आपने देखा होगा मार्केट में Yes, sir. सरसों के लीफ की सब्जी मिलती है, उसको एक स्पेशल थोड़ी सी अलग टाइप की खुशबू होती है, थोड़ा आपको अनयूजुअल खुशबू लगती है, लेकिन सरसों का साग आप पता है, सरसों का Yes, साग sir. पंजाबी लोग बहुत ज्यादा यूज करते। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट देखो, दैट इज आइबेरिस अमरा। यहाँ आइबेरिस और अमरा में स्पेस चाहिए, वो कट गई है, सो इट इज आइबेरिस अमरा। इन जनरल इट इज नोन एज अ चांदनी। Again, it is an annual ornamental herb cultivated in a winter. पहले हमने देखा था कल्टिवेटेड हर्ब है, फूड करके यूज करते। दूसरा आइबेरिस का देखो, आइबेरिस इज कल्टिवेटेड ऑर्नामेंटल हर्बेसियस प्लांट इन विंटर। जैसे हम क्रिसेंथेमम को रेनी सीजन में लगाते, विंटर में उसको फ्लावरिंग आते, वेरी सिमिलरली। देन नेक्स्ट वन दैट इज चिरैंथस चिराई। चिरैंथस चिराई अगेन इट इज ऑर्नामेंटल हर्ब। I have idea that you immediately did not remember the names, लेकिन आप कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो। So चिरैंथस चिराई and it is ornamental annual herb। मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हमने फूड करके फूड प्लांट या कल्टिवेटेड हर्ब देखा, ऑर्नामेंटल प्लांट देखे। देन नेक्स्ट वन रोरीपा मोंटाना which is known as a water cress, सेमी वाइल्ड है, वाइल्ड नहीं सेमी वाइल्ड है। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट मैंने बताया था लास्ट टाइम, कैप्सेला बुरसा पेस्टोरिस। कैप्सेला बुरसा पेस्टोरिस को बताया जाता है शेपर्ड्स पर्स।
आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान की तरफ से बहुत सारे मेंढपाल या शेपर्ड्स को पालने वाले लोग, गोट्स एंड शिप्स को पालने वाले लोग आते हैं. दीज आर कॉल्ड एज शेपर्ड्स. शेपर्ड्स के बगल में एक बैग रहती है एंड साइज ऑफ दिस बैग इज जस्ट लाइक हर्ट, सो इट इज नोन एज शेपर्ड्स पर्स. इट इज अगेन ए कॉमन वीड. नो डाउट आई एम गोइंग टू शो यू द फोटोग्राफ्स आल्सो. देन नेक्स्ट है दैट इज फ्रेस्टियाजा क्विमोनी. फ्रेस्टियाजा क्विमोनी, it is again a common weed. Next देखो Coronopus didymus. Coronopus didymus, it is again wild weed. Then Euruca sativa, it is known as a taramira, cultivated seeds for yield. अभी आपने सिर्फ 8 जनरा देखे, यूरुका, कोरोनापस, फ्रेटेजा, कैप्सेला, रोरिपा, चेरियांथस, हाइबेरिस एंड ब्रासिका. मेरे हिसाब से कम आपके 3 ध्यान में रहेंगे, ब्रासिका यानी मस्टर्ड, उसके बाद चेरियांथस और कैप्सेला. ये 3 जनरा तो ध्यान में रखते. कैप्सेला यानी शेपर्ड्स पर्स करके वो हमेशा ध्यान में रखो. इट बिलोंग्स टू फैमिली ब्रासिकेसी और क्रूसिफेरी. अभी इसके बाद हमने देखा है कि फूड प्लांट्स करके प्लांट यूटिलाइज करते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स करके यूटिलाइज करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ दीज आर वीड प्लांट्स. नाउ I think it is a time to go through different characteristic feature. अभी सब लोग आप पीपीटी देख रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Okay. A very small flower of mustard is enlarged here. यहाँ arrangement of petals देखो, cross like arrangement, मतलब ये पेयर इसके cross like arrangement में this one या zigzag arrangement, and so this family has been given the name क्रूसीफेरी इन अर्लियर टाइम. उसके बाद यहाँ नेक्स्ट जो दिखाया है, नेक्स्ट में देखो ट्विग दिखाई, यहाँ फ्रूट दिख रहे, यंगर फ्रूट टुवर्ड द बेस है और फ्लावर टुवर्ड द अपेक्स या बर्ड टुवर्ड द अपेक्स है, एंड दैट इंडिकेट्स द सक्सेशन. सक्सेशन कैसा है? इट इज अ बेसिपिटल सक्सेशन. बेसिपिटल का मतलब है बेस की तरफ ओल्डर एंड यंग के तरफ यानी अपेक्स के तरफ यंगर. देन लीफ के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था. लीफ इज लायरेट. लायरेट का मतलब है मार्जिन कट है, डिसेक्टेड है, लेकिन दिस डिसेक्टेड पोर्शन नॉट रीचेस अप टू मिड रिब, सो इट इज नोन एज अ लायरेट लीफ. देन नेक्स्ट देखो फ्रूट्स दिखाए हैं आपको, और दूसरा प्लांट एलेस ऑफ फ्लावर वो भी दिखाया है. नेक्स्ट देखते हैं हम, जस्ट अ मिनट. डिस्ट्रिक्ट में पहले फोटोग्राफ दिखाऊंगा, उसके बाद हम बाकी कैरेक्टर्स की तरफ देखते हैं. क्या आप अभी फोटो देख रहे हैं? Yes, sir. Here are 2 varieties, that is Brassica rapa and Cyanopsis arvensis. लेकिन यहाँ फिगर जो है पूरे Brassica rapa के. अब मैं फिर से आपको लीफ का कैरेक्टर दिखाता. देखो लीफ का मार्जिन सिंपल मैंगो जैसा नहीं है, इट इज अ डिसेक्टेड, बट डिसेक्टेड पोर्शन डिड नॉट रीचेस अप टू मिड रिब. अगर मिड रिब को टच हो गया तो इमीडिएटली इट बिकम्स कंपाउंड लीफ. आप यहाँ देखो, क्या ये मिड रिब को टच हुआ है? नहीं दिख रहा है, ये ग्रूव दिख रही, लेकिन मिड रिब को टच नहीं हुआ. यहाँ भी देखो मिड रिब को बिल्कुल टच नहीं हुआ. तो सच अ टाइप ऑफ लीफ इज नोन एज लायरेट लीफ, LYRATE, लायरेट. मैं और अभी सामने आपको डायग्राम्स या फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा. फिर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर देखो, अपेक्स को बर्ड, उसके नीचे मैच्योर फ्लावर, उसके नीचे अनराइप्ड फ्रूट और सबसे नीचे देखो राइपन्ड फ्रूट्स है. सो सच अ टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज ऑब्जर्व. मैं अभी सिर्फ फोटोग्राफ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, यानी डिस्क्रिप्शन के तरफ हम नहीं देख रहे. फिर से फोटोग्राफ देखो, फोटोग्राफ क्यों दिखा रहा हूँ वो भी मैं बताता हूँ आपको. अगेन देखो डेंस कंडेंसेशन ऑफ अ फ्लावर ऑन इन्फ्लोरेसेंस. इन्फ्लोरेसेंस यानी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर. कंडेंसेशन कैसा है? देखो ये फ्रूट है और अपेक्स को आप यंग फ्लावर्स या यंग बर्ड्स देख रहे हैं. सो सच अ टाइप ऑफ टिपिकल रेसिम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ दिस फैमिली. विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस? रेसिमोज या रेसिम. रेसिमोज में इनडिटर्मिनेट है, ग्रोथ इज कंटिन्यूड. उसके बाद मैं लीफ का कैरेक्टर आपको बताया था. जस्ट अ मिनट. हेलो, आप लोग सुन रहे हैं ना?
Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ, just a minute, just 1 minute. हाँ, उसके बाद हम देख रहे थे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लीफ का. Why I have told you that the leaf is lyrate, यहाँ क्लियर है. देखो ये क्या है, डिसेक्टेड एरिया है, लेकिन इट हैज नॉट रीच्ड अप टू मिडरीफ. यहाँ भी सेम है, यहाँ रिच हुआ है, यहाँ भी रिच हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है. So such a type of leaf in majority of cases where dissected area not reaches up to midrib, then it is known as a lyrate leaf. अब क्रूसीफेरी क्यों बताया, यहाँ देखो अपर पोर्शन ऑफ करोला जो है वो कैसा है, एक्सपांडेड ब्रॉड, और बेसल पोर्शन जो कैसा है, नैरो. उसके बाद नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ करोला देखो, दिस वन 1, दिस वन 2, दिस वन 3 and 4, दीज आर क्रॉस लाइक अरेंज्ड. उसके बाद स्टैमेन. अब स्टैमेन में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टैमेन. अब इन 6 स्टैमेन में आप ये 4 स्टैमेन जो है 1, 2, 3, जस्ट मिनट, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 स्टैमेन है. इन 6 स्टैमेन में अगर देखोगे तो 2 स्टैमेन छोटे है और 4 स्टैमेन इक्वल है. सो इट शोज टेट्राडिनामस कंडीशन. अब कैलिक्स ये देखो, दिस वन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. सो इट इज अ टेट्रामेरस फ्लावर. फ्लावर इज शोइंग टेट्रामेरस सिमेट्री. अब गाइनोसियम की तरफ देखो, बायकार्पेलरी, सिंकार्पस and ovary is superior. So in this way you have idea regarding the flower. आप लोगों में से कितने लोगों ने मार्केट में हम उसको बोलते हैं मुळ्याची शेंग बघितलेली आहे? हॅलो, विंटर सीझन मध्ये मार्केटमध्ये मुळ्याच्या शेंगा येतात, पण तो मुळा भाजीचा मुळा, खाण्याचा नव्हे. शायद आप लोगों ने देखा है. No, sir. No, sir. ओके, मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा. लेकिन मस्टर्ड के फ्रूट जैसा करीबन 2-2.5 इंच और करीबन अपने फिंगर जितना वो फ्रूट रहता है, दैट इज नोन एज अ रैफेनो ब्रासिका के एक्चुअली वो सीड्स है. मुळ्याची शेंग म्हणतो, मैं कभी आपको दिखाऊंगा. अभी नेक्स्ट दिखा दो, कैबेज, दैट इज ब्रासिका ओलरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस. अब देखो आप इसको बोलते हैं पत्ता गोभी. मॉर्फोलॉजिकल नेचर क्या है इसका? हेलो, मॉर्फोलॉजिकल नेचर क्या है इसका? ग्रीन है, कवर्ड है, पूरा कवर्ड है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली कौन सा पार्ट कवर्ड है? लीफ है, स्टेम है, रूट है? लीफ. और इसलिए आप उसको बोलते हैं पत्ता गोभी. शायद आपने वर्टिकली कट किया गया पत्ता गोभी देखा होगा. सेंटर में स्टेम और स्टेम से निकलने वाले लीफ वो सभी फोल्ड हो जाते हैं, इसलिए this also patta gobi also belongs to same family. Next one, your cauliflower. Morphologically, which part is used as a vegetable? Hello. Yes, sir. Morphologically, which part in case of a cauliflower is flower, or it is, to be more precise, it is a bud or entire inflorescence, and so you call it as a inflorescence, or you call it as a flower, or you call it as a फूलगोभी. नेक्स्ट यहाँ दिखाया है रेफेनस सटाइवस या मूला या मूली. शायद आप सभी लोग जानते हैं, हम यूटिलाइज करते हैं एज अ पार्ट ऑफ सलाड. सो दिस आल्सो बिलोंग्स टू फैमिली क्रूसीफेरी. मतलब हियर मॉडिफाइड स्टेम है. मतलब हम नॉर्मली why we are going to observe the different characteristic feature or different individual, we should know with variety of variations available in that family. अब यहाँ नेक्स्ट डायग्राम देखो फ्लावर की, एंड व्हाई दिस फ्लावर इज परफेक्ट 4 पार्टेड या क्वाड्रीपार्टेड, या हम बोलते हैं उसको 4 मेरस या क्वाड्रीमेरस सिमेट्री है, यूजुअली येलो और व्हाइट. इन केस ऑफ, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इन केस ऑफ फैमिली क्रूसीफेरी येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं. इट इज कल्टिवेटेड ऑन द लार्ज स्केल इन द ड्रायर पार्ट ऑफ राजस्थान. राजस्थान इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड. और एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि कल्टीवेशन ऑफ हनी और हनी बीज, जहां
मस्टर्ड की खेती होती है वहां नॉर्मली हनी बीज का बॉक्सेस रखते हैं, बिकॉज इट सीक्रेट्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ हनी एंड दिस हनी इज यूजफुल। एंड यहाँ आप अगर देखोगे तो फ्लावर्स परफेक्ट क्वाड्रिपार्टेट, यूजुअली येलो और व्हाइट इन नेचर। अब एलिस ऑफ फ्लावर, थोड़ा एलिस ऑफ फ्लावर देखो, एलिस ऑफ फ्लावर देखोगे तो देखो 1 2 3 4, ये एक्चुअली अगर आप देखोगे तो दिस पोर्शन इज अ पोर्शन ऑफ अ गाइनोसियम। हेलो हेलो, Yes, sir. गाइनोसियम आपको यहाँ दिख रहा है, मैं दिस पोर्शन बोला लेकिन आप ध्यान दे तो दिस वन इज अ गाइनोसियम। दीज 2 आर एंथर्स, एक्चुअली 2 नहीं है, ये 4 है, और ये 2, 4 और 2 6, और इसलिए स्टैमेन कैसा है, तो इट इज अ 6, दैट इज 4 + 2, इसलिए हम बोलते हैं उसको टेट्रामेरस और टेट्राडिनेमस, टेट्रामेरस नहीं टेट्राडिनेमस। देन फ्रूट टाइप, सिलिक्वा और फ्रूट का टाइप है सिलिकल और सिलिक्यूली। सो सिलिक्वा फ्रूट, हियर इज अ फॉल्स सेप्टम, ये फॉल्स सेप्टम आपको दिखता है यहाँ, इट इज प्रोमिनेंट है। यहाँ देखो this one is lunaria, so in case of lunaria you can observe presence of this septum, and along the both sides of septum seeds are available. Lunaria is also known as nonsti or it is known as moneywort, ठीक है। so this one is regarding replum and false septum. Then next one, अभी here are large number of, मैंने अभी बताया था कि फूलगोभी और पत्ता गोभी, फूलगोभी में एडिबल पोर्शन इन्फ्लोरेसेंस या फ्लावर्स है, लेकिन पत्ता गोभी में लीफ है। यहाँ आप देखोगे कट किया हुआ पोर्शन है, दिस इज द पोर्शन ऑफ अ स्टेम एंड दीज आर द लीफी पोर्शन ऑन स्टेम, बट इट इज कंडेंस्ड। मतलब हाउ मॉडिफिकेशन इन केस ऑफ ब्रासिकेसी फैमिली, देखो हमने ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस या मस्टर्ड में अच्छा वेल डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड देखा था, उसकी जगह हमने पत्ता गोभी में देखा कि इन्फ्लोरेसेंस इज श्रिंक हो गया है, और दूसरा हमने मूली में देखा था कि इट इज मॉडिफाइड टू स्टोरेज पोर्शन। देन नेक्स्ट वन, हियर आर फ्लावर एंड अदर डिटेल्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में। अब कुछ जनरा, this one is Hesperis matronialis, it is also named as Dem's rocket. Again you observe the flower, they are showing trimerous symmetry, that is number of corolla are 4, and how these are arranged यहाँ देखोगे they are cross like. Then Arbis lyrata, again cross like arrangement, or lyre leaved rock cress. Then Capsella bursa pasturis, shepherd's purse, this one also. Remember I have taken these photographs from the internet, नेट वरून घेतलेले काही फोटोग्राफ आहेत, काही स्वतः काढलेले आहेत जे अवेलेबल आहेत ते. my aspect or my effort is that you should be familiar with these different photographs or plant, इसलिए जब हम उसके अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे तो वी शुड बी फैमिलियर। देन लोकल फ्लोरा में प्लांट देखो ब्रासिका रैपा और फील्ड मस्टर्ड विच इज कॉमन, एंड नेक्स्ट वन लेपिडियम कैम्पेस्ट्री, शायद आप लोगों को ये प्लांट मालूम नहीं है, लेकिन लेपिडियम कैम्पेस्ट्री आल्सो बिलोंग्स टू फैमिली क्रूसिफेरी और ब्रासिकेसी। सो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ब्रासिकेसी। टाइम बचा है क्या नहीं है? नहीं सर। ओके, तो जस्ट अ मिनट, हम यहाँ लीव यानी जस्ट मिनट, मैक्सिमम प्रेजेंटी कितनी थी कोई बता सकता है? 66 जस्ट मिनट, मैक्सिमम प्रेजेंटी अपनी आपने बताया 66, एक सेकंड, सिक्सटी सिक्स है। थोड़ी प्रेजेंटी अभी भी और अच्छी चाहिए, ठीक है? तो shall I stop now? Yes, sir. Yes, Okay, yes, sir. because I think we have next lecture. Next lecture कौन सा है? Zoology. Zoology. Zoology.
Physiology. अगर आपको लेक्चर बहुत स्पीड से लगता है, कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, मराठी ज्यादा बोल रहा हूँ, हिंदी ज्यादा बोल रहा हूँ, अंग्रेजी ज्यादा बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, फील फ्री टू राइट एनीथिंग, आई डोंट हैव एनी हेजिटेशन। अगर आपने मुझे क्लासरूम में भी बताया कि सर आप बकवास पढ़ा रहे, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको स्पीड कम चाहिए तो कम करेंगे। प्लीज ट्राई टू इंटरैक्ट। आ रहा है ध्यान में? हमारी मम्मी ने कहा पोयामध्ये माचीस दिसली. हेलो, ओके, लीव नाउ। ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you. हेलो, Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू सर. थैंक यू। चलो लीव करो, धीरे धीरे लीव करो। प्लीज माचीस दे ना थोडीशी. थांब मला दे. 2 मिनिटासाठी माचीस तर दे गं.